Dear students, this is your online lecture. As I told you in the physical classes that our next topic will be simplex method. Before that, even I have given you the 3 questions to be discussed, but unfortunately the physical classes have been suspended, and again we have been compelled to be on the online mode. So hopefully on coming Thursday, we will have the live session on MS Teams. In that, we will discuss whatever be the 3 different issues where I have given you to explore and to discuss. So in that online session, we will go through that one. Now let's come to the today's topic, simplex method. This is another linear programming technique besides your graphical method. Now if graphical method is there, then why we are using? This is the primary question. So the reason behind using the simplex method is graphical method is limited only up to the 2 variables. That means whenever we have decision variables in our objective function, here are 2 variables. This is the same problem I have chosen for you people because already you have done this problem with the graphical method. So in graphical method, problem can be solved as long as there are 2 variables. Once the number of variable increases, it would become difficult or rather impossible to solve the problem when we have more than 2 variables. For that purpose, we are using the simplex method. Now for simplex method, there is no any limit of the number of variables. Mind this thing, that there is no any limit of number of variables. Any number of variables can be there and it can be solved by a simplex method. So that's why I have taken this one, because you have already one solution in your hand with the graphical method. So let's solve this one with the simplex method now. Now the simplex method is totally algebraic method. It will be change technique from the graphical method. There is no use of graph in this technique. Now the problem is in front of you. You have already this problem, so nothing to worry about. Now the very first step towards solution of the simplex method is to write down the standard LP model. Standard LP model, that is linear programming model. Standard linear programming model. What we are doing over here, that is objective function to maximize Z. Now transfer all the variables to the left hand side. So Z minus 3xe minus 2xi equals to 0. Right hand side will become equal to 0. Now then subject to the constraints. Subject to the constraints. So very first constraint I am writing here, xe plus 2xi plus s1 equals to 6. Now here directly you cannot replace the inequality with the equal to sign. We will not replace inequalities with the directly with the equal to sign because this is algebraic method. So let me explain you in your own field कि आप लोग import export का concept business students को already है, लेकिन मैं थोड़ा और इसकी तरफ जा रहा हूं कि सपोज के आप लोगों के पास एक है कि प्रोडक्शन कितनी है, ठीक, दूसरी है आपकी कंजप्शन, आपके एग्जाम्पल फील्ड से एग्जाम्पल लेकर मैं
एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये जो वेरिएबल है लेस देन में हमने हटाकर प्लस किया है, और अगर ग्रेटर देन होगा तो हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी। सो से देयर आर 3 कंडीशंस के प्रोडक्शन को हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंजप्शन को हम C से शो कर रहे हैं। कि देयर आर 3 कंडीशंस कि योर प्रोडक्शन इक्वल्स टू कंजप्शन, व्हाट इफ योर प्रोडक्शन इज लेस देन योर कंजप्शन, व्हाट इफ योर प्रोडक्शन इज अबव मोर देन योर कंजप्शन। नाउ दीज आर द 3 सिचुएशंस व्हिच नॉर्मली हैपेंस विद एवरी कंट्री। कि अगर आपकी प्रोडक्शन बराबर है कंजप्शन के, कि जितनी फर्ज कर लें कि वीट, हम लोग वीट में खुद का फील है, या कभी कभी शॉर्टेज हो जाती है, या कभी हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो ये तीनों सिचुएशंस हैं कि प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजप्शन, प्रोडक्शन इज लेस देन योर कंजप्शन, प्रोडक्शन इज योर ग्रेटर देन योर कंजप्शन। तो अब होता क्या है कि प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजप्शन है तो वो वहाँ तो कोई इशू ही नहीं है, इट इज जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट वन। नाउ अगर हमारे पास प्रोडक्शन कम है कंजप्शन से, तो हम क्या करेंगे, कोई भी मुल्क क्या करेगा कि उसको अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए कहीं किसी और कंट्री से वीट मंगवानी पड़ेगी, तो इसको आप कहते हो इंपोर्ट। तो सिंपली आप इन दिस कंडीशन, अगर ये लेस देन है तो आप क्या करोगे कि प्रोडक्शन प्लस जितनी आपने इंपोर्ट की वो बराबर हो जाएगी आपकी कंजप्शन के, ठीक। और अगर हमारे पास प्रॉब्लम आ जाए इस तरह से कि प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन, कि हमारे पास प्रोडक्शन एक्सेस में है, तो हम क्या करेंगे कि प्रोडक्शन माइनस एक्सपोर्ट इक्वल्स टू कंजप्शन, यानी हमारे पास जितनी शॉर्टेज है हम उतना इंपोर्ट करेंगे, वो इंपोर्ट जो हमने की अपने प्रोडक्शन में ऐड करेंगे तो कंजप्शन के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास प्रोडक्शन ज्यादा है हमारी अपनी जरूरत से, तो हम जो एक्सेसिव है वो हम एक्सपोर्ट करेंगे और वो बराबर हो जाएगा आपके कंजप्शन के। सो सिंपली कहने का मकसद है कि आप लोगों को देखना यह है कि इफ देयर इज एनी लेस देन इनइक्वालिटी, लेस देन आर इक्वल टू, तो you will add a variable, you will add a variable, and if you have a greater than sign, if you have greater than, then you will subtract the variable to balance the equation। equations को बैलेंस करना मैथमेटिकली भी यही रीजन है कि हमें बैलेंस करना है इक्वेशन को, हमें कोई चेंज नहीं करनी। That's why this is simple one. So I have taken the example कि हम क्यों लेस देन में प्लस कर रहे हैं और माइनस में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। So this is what is the basic concept behind removing the inequality and adding or subtracting the variables. Now furthermore, अब आपके अपनी फील्ड के हिसाब से ही या टेक्निकल लैंग्वेज के हिसाब से ही हमें चलना है। So when you are adding a variable, that variable is known as your slack variable, SLACK, slack variable। और जो वेरिएबल आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसे आप कहते हो सरप्लस वेरिएबल। सो दीज टर्म्स आर फ्रॉम इकोनॉमिक्स, यू पीपल आर वेल अवेयर, मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्लैक क्या है, सरप्लस क्या है। इवन इफ यू डोंट नो, फिर भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लियर कर दी हर चीज। सो लुकिंग एट दिस वन, अब ये स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, दैट मीन्स कि हमारा जो S1 वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया ये हमारा स्लैक वेरिएबल है। सो नाउ फर्दर सॉल्यूशन के फर्दर जो हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं उनमें से हमें इनइक्वालिटी हटाकर और स्लैक और सरप्लस वेरिएबल जहाँ भी हैं आ रहे हैं तो हमें वो इंट्रोड्यूस करने हैं। सो लेट्स लुक एट दिस वन। सो आफ्टर दिस वन, this is the complete your standard linear programming model, that in each of the constraint we have less than, so plus S1, second constraint less than, so plus S2, third constraint less than, so plus S3, fourth constraint less than, so again plus S4. Rest of the things are same, we just remove the
इनइक्वलिटी साइंस, हमने इनइक्वलिटीज हटाकर उनकी जगह स्लैक और सरप्लस वेरिएबल जिस हिसाब से आने हैं वो हम रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब लेस देन था, इनइक्वलिटी थी, इसलिए हमने हर इक्वेशन के अंदर, हर कंस्ट्रेंट के अंदर जो है वो वेरिएबल ऐड किया। देन फाइनली दिस यू नो is the non-negativity. So whatever be the decision variables and your slack and surplus variable, they must be the part of your non-negativity. जितने भी अब वेरिएबल्स हैं, चाहे वो डिसीजन वेरिएबल्स हैं, चाहे आपके स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स हैं, वो सब के सब अब आपके नॉन नेगेटिविटी के पार्ट हो जाएंगे। आई टोल्ड यू कि नॉन नेगेटिविटी का रीजन क्या है। The same implies to the your slack and surplus variables. So there is no change at all. Hope this concept should be clear. के first step is to write down the standard LP model, standard linear programming model. Next step हमारा क्या है? Is starting basic feasible solution. Some books are writing starting basic feasible solution, or few are writing initial basic feasible solution. Initial basic feasible solution or starting basic feasible solution. What we are doing here, we are saying that by setting n minus m variables equal to 0. By setting n minus m variables equal to 0. Now what is n? What is n? N is total number of unknowns or variables. That is, now we have 6 variables. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number of variables, total number of variables which are now in your standard LP model, not in your initial model after starting basic feasible solution. What is n? n is total number of constraints. That is 1, 2, 3, 4 constraints we have. So by setting n minus m variables equal to 0 means n minus m 6 minus 4, because n is 6, m is 4. So 2 variables equal to 0. Now the question arises, which 2 variables? Because there are 6 variables. So the first preference is to be given to the decision variables, not the slack or surplus variables. First preference is to be given to your decision variables. So we have the decision variables xe equals to 0 and xi equals to 0. ये 2 वेरिएबल्स आपके इनिशियली 0 हो जाएंगे और इनको हम कहेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल्स. Rest of the variables s1, s2, s3, s4 are known as your basic variables. डेफिनेशन मैं बता रहा हूं आपको कि नॉन बेसिक वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होगी. वो वेरिएबल्स, वो अननोन्स जिनको इनिशियली आपने 0 कंसीडर किया है, उनको हम कहेंगे कि ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं. लाइक xe and xi, they are 0, so these are called your non basic variables. बेसिक वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या है? The variables having unit coefficient. यूनिट का मकसद है 1. वो वेरिएबल्स जिनका कोएफिशिएंट किसी एक इक्वेशन में 1 हो और बाकी सब में 0. The variables having unit coefficient in one equation and 0 in others, that is, these are known as your basic variables. तो अगर हम S1 को देख लें, S1 का कोएफिशिएंट क्या है? 1. ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट के अंदर इसका कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन S1
सेकेंड कंस्ट्रेंट, थर्ड कंस्ट्रेंट या फोर्थ कंस्ट्रेंट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मीन्स इट्स कोएफिशिएंट इन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कंस्ट्रेंट इज 0। तो इसीलिए ये क्वालिफाई कर रहा है S1 कि ये बेसिक वेरिएबल। इसी तरह से S2, S3, S4 को भी देख लें, ये तीनों ही आपके चाहे S2, S3, S4 हो, ये तीनों क्वालिफाई कर रहे हैं बेसिक वेरिएबल्स की डेफिनेशन को। होप इट शुड बी क्लियर टू यू पीपल। ये स्टेप 2 तक, यहां तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। देन नाउ यू हैव टू कम टू द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में आपको आना है। वहां हमेशा आप लोग स्टार्ट करोगे फर्स्ट कॉलम बेसिक, देन ऑल द वेरिएबल्स XE, XI, S1, S2, S3, S4 and the last column should be solution column. First basic, last solution, इन दोनों के दरमियान बाकी जितने वेरिएबल्स हैं वो आप लोग कॉलम बनाएंगे। अब सबसे पहले हम लोग Z इक्वेशन को लेंगे। Z इज योर ऑब्जेक्टिव इक्वेशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। Z के अंदर XE का कोएफिशिएंट क्या है? -3। XI का कोएफिशिएंट क्या है? -2। S1, S2, S3, S4 ऑब्जेक्टिव इक्वेशन के अंदर नहीं है, तो इसका मकसद है कि ये सब आपके 0 होंगे। What is solution? Solution is the right hand side of each equation. तो Z का राइट हैंड साइड इस वक्त क्या है? 0. So you will write here 0. Then we are going to the next. अब बेसिक का हमने क्यों लिखा बेसिक? क्योंकि हमने बेसिक वेरिएबल्स लिखने हैं। तो बेसिक वेरिएबल्स हमने डिसाइड किए थे कि S1 है, S2 है, S3 है और S4 है, जो हमने इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन में सॉल्व किया था। तो S1 इक्वेशन इज दिस वन। इस S1 इक्वेशन में XE का कोएफिशिएंट क्या है? 1, XI का कोएफिशिएंट 2, S1 का कोएफिशिएंट 1, S2, S3, S4 क्या है? नहीं है, यानी 0। तो सॉल्यूशन इज द राइट हैंड साइड। तो S1 की राइट हैंड साइड क्या है आपकी? 6। सो दिस विल बी 6 here. Now this, let me erase this form for you people. Similarly, S2 equation is this one. In S2 equation, it will be coefficient of XE is 2, XI coefficient is 1, S1 is not available, that means does not exist 0, S2 is 1, S3, S4 are not there, right hand side, so solution will be your 8. This is your second constraint. So this is your initial table from the 4 constraints after standard LP model. Standard LP model से लेकर हमने हर एक के कोएफिशिएंट्स को लेकर अपने टेबुलर फॉर्म में रख दिया। Now what is the theme behind सिंप्लेक्स मेथड? सिंप्लेक्स मेथड पे करना क्या होता है कि हमें ये जो वेरिएबल्स हैं नॉन बेसिक कहलाएंगे इस तरफ से। मोस्टली जो आपने नॉन बेसिक लिखा वो XE और XI थे। तो नॉन बेसिक वेरिएबल्स को कन्वर्ट करना होता है बेसिक वेरिएबल्स में अंडर सर्टेन रूल्स। लेकिन वो जो हमने n-n किया था, तो वहां पर आप लोगों ने देखा कि बेसिक वेरिएबल 4 आए और नॉन बेसिक 2। तो बेसिक की लिस्ट अब 4 वेरिएबल यानी 4 को ही हमें लेकर रखना है, 4 से ज्यादा इस लिस्ट में नहीं आएंगे। यहाँ 1 2 3 4 है। तो अब अगर हम यहाँ से कोई नॉन बेसिक उठाकर यहाँ रख भी रहे हैं तो अल्टीमेटली यहाँ से कोई वेरिएबल एक हमें निकालना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा। एक को हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, इन करना पड़ेगा, दूसरे को यहाँ से हमें आउट करना पड़ेगा अंडर सर्टेन रूल्स। सर्टेन रूल्स के तहत हमें करना पड़ेगा। वो रूल्स क्या हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि हमें वेरिएबल्स इन और आउट का हमें करना है, सो सबसे पहले हमारा आता है एंटरिंग कॉलम। एंटरिंग कॉलम कि यहां से कौन सा वेरिएबल एंटर होगा, दैट इज नोन एज योर एंटरिंग कॉलम। एंटरिंग कॉलम
क्या है? If our objective function is of the maximization, if our objective function is of maximization, then the entering column is the most negative value in z equation. तो z के अंदर जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हो, -3, -2, ये तो बाकी जीरो है, तो मोस्ट नेगेटिव हमारी क्या है? -3. तो दिस विल बी योर एंटरिंग कॉलम. दिस विल बी योर एंटरिंग कॉलम. भले आप लिख दो एंटरिंग कॉलम EC. ठीक. नाउ डेफिनेशन आई टोल्ड यू कि इफ an objective function is of maximization in simplex method, an entering column will be the most negative value in the z equation. और अगर प्रॉब्लम हमारा मिनिमाइजेशन का हो तो एंटरिंग कॉलम हमारा मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा z इक्वेशन के अंदर. रिवर्स, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन में हम माइनस ले रहे हैं तो मिनिमाइजेशन में हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी. देन देयर इज अनदर टर्म कि हमें, मैंने आपको बताया कि हमें यहां से एक वेरिएबल आउट करना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं लीविंग वेरिएबल. तो लीविंग वेरिएबल क्या है? उसकी डेफिनेशन, इट इज द स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ सॉल्यूशन टू एंटरिंग कॉलम. इट इज द स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ सॉल्यूशन टू एंटरिंग कॉलम. However, we will ignore का मकसद है we will not find ratio for those wherever there are negative or zero values in entering column. नेगेटिव और जीरो जहां होगा हम उनका रेशो नहीं मालूम करेंगे. तो देखें, रेशो का मकसद है डिवीजन करना. तो सॉल्यूशन कॉलम ये है आपका 6, इसका एंटरिंग कॉलम क्या है? 1. तो 6 डिवाइडेड बाय 1 इट विल बिकम इक्वल टू 6. देन सेकेंड का 8, सॉल्यूशन कॉलम 8 है, डिवाइडेड बाय एंटरिंग कॉलम दैट इज 2, सो इट विल बिकम इक्वल टू 4. ये नेगेटिव है, इसका नहीं निकालना. ये 0 है, इसको हमें नहीं निकालना. रेशो नहीं फाइंड आउट करना. व्हाट आई सेड के लीविंग वेरिएबल इज द स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ सॉल्यूशन टू एंटरिंग कॉलम. तो हमने रेशो निकाला 6 और 4, स्मॉलेस्ट रेशो. दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है? 6 और 4 में से 4. सो विल से कि ये हमारी लीविंग इक्वेशन है या लीविंग वेरिएबल, LV, लीविंग वेरिएबल. होप टिल हियर you must have understand each and everything. Now you can see the two formulae on your board now. First one is new pivot equation is equal to old pivot equation divided by pivot element. Second is new equation is equal to old equation minus its entering column coefficient multiplied by new pivot equation. ये दो फार्मूले हैं, इनसे हमें आगे चलना है. क्यों? क्योंकि हमें अब नई वैल्यूज चाहिए सबकी. ये पूरे टेबल के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं इन सब की हमें न्यू वैल्यूज चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जाना पड़ेगा टू फाइंड आउट द न्यू पिवट इक्वेशन. व्हाट इज पिवट? यू माइट हैव हर्ड द वर्ड पिवटल रोल, मेन, प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट वन. सो न्यू पिवट इक्वेशन इज इक्वल टू ओल्ड पिवट इक्वेशन. ओल्ड पिवट इक्वेशन कौन सी है आपकी? द लीविंग वेरिएबल इक्वेशन इज नोन एज ओल्ड पिवट इक्वेशन. यानी ये जो S2 हमें लीव करवाना है इसे हम कहेंगे कि ये हमारे ओल्ड पिवट इक्वेशन है. ठीक. देन पिवट एलिमेंट. पिवट एलिमेंट कौन सा है? इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एंटरिंग कॉलम एंड लीविंग वेरिएबल. जहां एंटरिंग कॉलम और लीविंग वेरिएबल इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस एलिमेंट को. यानी ये देखें कि ये 2 आ रहा है. दिस 2 इज बेसिकली नोन एज योर पिवट एलिमेंट. ठीक. नाउ यू हैव बोथ द इक्वेशंस. New pivot equation is equal to old pivot equation divided by pivot element.
and new equation is equal to old equation minus its entering column coefficient into यानी multiply by new pivot equation. So now further first we will find out the new pivot equation. उसका फार्मूला ओल्ड पिवट इक्वेशन डिवाइडेड बाय पिवट एलिमेंट, और ओल्ड पिवट इक्वेशन है आपकी लीविंग वेरिएबल इक्वेशन इज नोन एज ओल्ड पिवट इक्वेशन, और पिवट एलिमेंट हमारा है जो एंटरिंग कॉलम और लीविंग वेरिएबल के ऊपर इंटरसेक्शन आ रही है. सो दिस टू इज नोन एज योर पिवट एलिमेंट. So now here are the calculations. New pivot equation is equal to old pivot equation. So I told you कि leaving variable equation 2101008 2101008 is your old pivot equation, and each value or each column must be divided by pivot element, that is 2. So 2 divided by 2, 1 divided by 2 and onwards. So new pivot equation will become equal to 1 over 2. This will be 0. This will be 1 over 2. This is 0. This is 0. This is 4. So these are the values of your new pivot equation. For short, I am writing NPE. New pivot equation आपकी आ गई 1 over 2, 0, 1 over 2, 0, 0, 4. Now, new Z equation. Told you the formula, old equation. So, because we are finding new Z equation, so the values will be here of old Z equation. Z equation आपकी ये पड़ी हुई है -3, -2, 0, 0, 0, 0 and this is 0. So, old Z equation minus its entering means Z का entering column coefficient वो है आपका -3. This into new pivot equation, वो new pivot equation आपने ये मालूम की थी 1 over 2, 0, 1 over 2, 0, 0, 4. Now minus it will be +3 into each element of new pivot equation. So +3 into 1 it will be +3. Keep over here. +3 into 1 over 2 it will be 3 over 2. +3 into 0 it will be 0. +3 into 1 over 2, 3 over 2. +3 into 0 again 0. +3 into 4 it will be 12. So these are the calculations you have made. Now just simplify. -3 + 3 it will be 0. It will become equal to -1 over 2. This will be 0. This will be 3 over 2. This is 0. This is 0. 0 plus 12, it will be 12. So these are the values of your new Z equation. These are the values of your new Z equation. Now, similarly, you have to find out the new values for S1, new values for S3, new values for S4. यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि S2 की न्यू वैल्यूज आप लोग नहीं मालूम करोगे. Why? Because it is the leaving variable. ये leaving variable है. ओके तो जिस तरह से मैंने न्यू Z मालूम की है, इसी तरह से न्यू S1, न्यू S3 और न्यू S4 हम मालूम करेंगे. ये वैल्यूज कैलकुलेशन के बाद हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे. सो टिल नाउ आई एम जस्ट फिनिशिंग हेयर कि आप लोग ये कैलकुलेशंस कर लें, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, एंड फर्दर मोर आगे का जो लेक्चर होगा इसका पार्ट 2 वो कंटिन्यू करेंगे ताकि आप लोगों की समझ में भी आए आराम से. क्योंकि इसके बाद एक और प्रॉब्लम मैं करूँगा इसी के ऊपर, सिंप्लेक्स मेथड के ऊपर, वो इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे. इफ़ देयर इज़ टाइम वी विल मैनेज दिस वन, नथिंग टू वरी. आप लोगों को अब करना क्या है कि थर्सडे के दिन जितने भी इश्यूज़ हैं जो फिज़िकल क्लास के अंदर 3 इश्यूज़ मैंने क्रिएट किए थे या आपको प्रॉब्लम्स दिए थे कि मुझे इनके ऊपर डिस्कशन चाहिए, प्लस में इस सिंप्लेक्स मेथड के कैलकुलेशन के हवाले से आगे आप लोग करोगे तो उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में रखूँगा. लेकिन ये पूरा डिस्कशन हम
ऑनलाइन सेशन के अंदर थर्सडे के दिन 10 बजे इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे MS टीम्स के ऊपर। तब तक अगर किसी को भी कोई इशू हो तो व्हाट्सएप है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप लोग अपने इश्यूज़ रख दें। बारी बारी मैं आपके क्वेरीज का जवाब देता जाऊँगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन टू द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।